بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید بیلی راجپوتہ کی ملکہ قسط نمبر 15 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ نہ کوئی وقت طے پایا تھا اور نہ ہی جگہ، مگر اس رات وہ جیسے ہی کچے راستے پر آئی، جانے کس طرف سے نکل کر وہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی، لبوں سے چیخ نکلی ہی تھی کہ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بدر ہوں چاندی میں نہایا اس کا چہرہ دیکھا تو وہ گھبرا کر ہاتھ ہٹانے لگی تھی، ڈھیلی پڑ گئی۔ بدر نے آہستگی سے ہاتھ ہٹا دیا۔ اسے اپنے ساتھ ہاتھ سے اس کی مہک آنے لگی تھی۔ تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ مایا کا لہجہ مشکوک پا کر وہ ہنس دیا۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں آؤں گی؟ مت شک کرو، میں نہیں ہوں وہ بھوت۔ آج چونکہ بدھ کی رات ہے تو میرا اندازہ تھا کہ تم ضرور آؤ گی، اور مجھے بھی علم تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس کا غضب ڈھاتا سراپا نمایاں تھا۔ وہ اسے گلابی شب خوابی کے ریشمی لباس میں کسی گلاب کی طرح دہکتی لگی تھی۔ سنگار سے بے نیاز چہرہ سمیٹ کر دائیں کندھے پر ڈالے بال، جن میں پروئے موتی چاندی میں کبھی کبھی چمک اٹھتے تھے، وہ دونوں ساتھ ساتھ کچے راستے پر چلنے لگے۔ کیا تم نے کسی بھوت کو قبرستان جاتے دیکھا؟ ابھی تو رات ہوئی ہے دیوی جی، ابھی غالباً ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ آسانی سے نکل آئیں حویلی سے، بس گوپال کی غیر موجودگی کی تسلی کر کے نکلی ہوں۔ شکر ہے کسی نے دیکھا نہیں۔ بدر نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ کبھی کبھی وہ اسے کوئی معصوم سی چھوٹی بچی لگتی تھی، مگر وہ کیا تھی وہ اب تک نہ سمجھ پایا تھا۔ بس ایک سحر سا تھا، ایک طلسم ہوشربا جو اس کے وجود سے پھوٹتا بدر کو اپنے اثار میں مقید کیے ہوئے تھا۔ اسے لگتا تھا وہ چاہے بھی تو صدیاں یہ اندیکھی زنجیریں نہیں کھول سکے گا، وہ ہمیشہ اس سحر میں مقید رہے گا۔ دوسرے ہندوستانیوں کی طرح فرنگی عورتیں اسے بھی پھیکی، خشک، سرد مزاج اور سپاٹ لگتی تھیں۔ ان کی اکثریت بے حد گوری، مغرور اور فربئی ماہر، روکھی پھیکی سی ہوتی تھی، اور بطور ہندوستانی مرد اسے ایسی عورتیں ہرگز پسند نہ تھیں۔ اگر کوئی بھی ہندوستانی زہرہ اور مایا کا تقابل کرتا تو اسے زہرہ زیادہ حسین لگتی کہ اس کا حسن مشرقی تھا۔ وہ بال نہیں کھولتی تھی، سر کو آنچل سے ڈھکے رکھتی تھی۔ وہ بلا شبہ بیلی کی سب سے حسین لڑکی تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جسے مایا جیسا کوئی لگتا ہی نہ تھا۔ مایا در حقیقت اتنی حسین نہ تھی، مگر اس نے اپنے وجود کو کچھ ایسا تراشا تھا کہ خود سے پھوٹتی مقناطیسی شعاعوں سے وہ کسی کو بھی بس نگاہوں سے مقید کر لیتی تھی، بالکل ایسے جیسے بدر نے سوچا، اور اس کے ذہن میں بس ایک ہی مثال آئی، جیسے کوئی سنگ تراش کسی عام سے پتھر کو تراش کر ماہ ملکہ بنا ڈالے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ چونک کر حال میں واپس آیا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ سوچ رہا تھا تمہارے پر بیلی کا ایک لیجنڈ صادق اترتا ہے۔ کون سا لیجنڈ؟ پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی یہ پھاٹک کھولو۔ قبرستان آ گیا تھا۔ لکڑی کا پھاٹک بند پڑا تھا، بند کنڈے میں ٹوٹا ہوا تالا جھول رہا تھا۔ کیسا بھوت ہے جسے اندر جانے کے لیے تالا توڑنے کی ضرورت ہے؟ یہ تالا ادھر تھا ہی کیوں؟ شاید نمبردار نے لگوایا تھا۔ اب تو وہ نسل ہی ختم ہو گئی جو اس قبرستان میں فاتحہ پڑھنے آتی تھی۔ یہ بہت قدیم قبرستان ہے مایا دیوی۔ قبرستان ویران پڑا تھا اور قبریں جانے کب سے کھنڈر بن چکی تھیں۔ چھوٹی سی کچی پکی چار دیواری کے ایک سرے سے لگا برگد کا بوڑھا درخت برسوں سے ویسے ہی جھکا کھڑا تھا۔ عجب ہو کا عالم تھا، سناٹا، تاریکی اور ہیبت بھرا احساس، جیسے اندر کوئی ہو، کوئی اندیکھی سفید لبادے میں لپٹی روح۔ آؤ ادھر بیٹھتے ہیں۔ وہ دونوں برگد کے تنے تلے بیٹھ گئے، ایسے کہ پھاٹک سے داخل ہونے والے کسی بھی شخص پہ ان کی فوراً نظر پڑ جاتی، مگر ان کو نہ دیکھ سکے۔ لمحے خاموشی سے سرکتے رہے۔ آدھے چاند کے اوپر بادل تیر رہے تھے، کبھی وہ ان کے پیچھے چھپ جاتا، کبھی نکل آتا۔ بیلی کا آسمان خوبصورت ہے، جانتے ہو بدر، ایسا آسمان میں نے کہیں نہیں دیکھا۔
वो तने से सर टिकाए ऊपर देख रही थी। बदर खामोशी से मुसलसल फाटक पर नज़र रखे हुए था और ऐसा चाँद भी मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। बदर, तुम्हें लगता है हम आज इसे देख सकेंगे? चाँद को? वो बेख्याली में गोया हुई। नहीं माया, भूत को। ओह, इसने लफ्ज़ उकेड़े। सुना तो था कि रात को इधर आता है, क्या मालूम आज भी आ जाए, क्या मालूम ना आए। तुम मायूस क्यों हो रहे हो? क्या तुम नहीं हुई? नहीं, इसने धीरे से शाने उचका दिए। तो बदर ने गौर से इसे देखा। तुम्हारा मुस्तकबिल के बारे में क्या ख्याल है? कम अज़ कम मायूस नहीं हूँ, होना भी नहीं चाहिए। फिर कदरे तौक़ुफ़ से क्या शादी करोगी? शायद, इसने फिर से शाने उचका दिए। गर्दन अभी तक ऊपर उठी थी। बेली में कब तक रुकोगी? शेखर के कातिलों की सज़ा तक। फर्ज करो तुम्हें वो ना मिले, तुम्हें वो भूत भी ना मिले, तुम्हें कुछ भी ना मिले, तब क्या करोगी? तो ज़िंदगी फिर से शुरू कर दूंगी, यानी शादी कर लोगी। शायद। माया, वो अब भी तारों को देख रहा था। तुम मुझसे शादी करोगी? बगैर तमहीद के इसने इतने अचानक कह डाला कि वो खुद भी हैरान रह गया था। मगर तुम तो मंसूब हो ज़ोहरा के साथ। नाराज़ी न नागवारी, बस आराम से पूछा तो मज़ीद हैरान हुआ। मैं इसकी शादी किसी अच्छे ख़ानदान में करवा दूंगा। इसे मुझसे बेहतर कोई भी मिल जाएगा। तुम्हें भी मुझसे बेहतर कोई भी मिल जाएगी। मुझे बेहतर की तमन्ना कहाँ है माया? वह जैसे थक कर बोला, मुझे लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मगर मगर तुम नहीं समझोगी। ये मोहब्बत है ही ऐसी चीज़, बहुत हकीकी, मगर हकीकत से दूर ले जाने वाली। तुम अभी खुद पर यकीन नहीं हो कि तुम्हारे महसूसात की हकीकत क्या है। तुम्हें सिर्फ ये लगता है कि तुम्हें मुझ अल्फाज इसके लबों पर रह गए। फाटक के इस पार एक ह्योला सा नज़र आया था। इधर कोई है। वो फुर्ती से नीचे हो गई। कौन है ये? वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहे थे। बदर, क्या हम कब्रिस्तान के भूत का असल चेहरा देखने वाले हैं? कोई था जो कब्रिस्तान की छोटी सी चारदीवारी के साथ साथ चल रहा था, जैसे अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। दूर से चेहरा वाज़ेह ना था, मगर सफ़ेद कुर्ता साफ नज़र आ रहा था। माया ने आंखें सिकुड़ कर देखा और फिर इनका मुंह हैरत से खुल गया। गोपाल, वो गोपाल ही था। चार दीवारी से झांकने की कोशिश में दीवार के साथ साथ चल रहा था। माया ने इधर उधर मिट्टी पर हाथ मारा। एक पत्थर इसके हाथ लगा। इसने खींच कर वो पत्थर गोपाल को दे मारा। पत्थर इसके कंधे से टकराया और दूसरे ही पल गोपाल भूत भूत चिल्लाता भाग उठा। वो दोनों अभी तक बेयकीनी से गोपाल को भागते तारीकी में गुम होते देख रहे थे। कच्चे रास्ते पर गुबार के बादल हल्के से उठे थे। तो ये नौटंकी भूत गोपाल था। वो ताहिर ज़दा सी थी। नहीं, बदर सोचती निगाहों से ज़मीन पर वापस बैठते गर्द को देख रहा था। वो गोपाल नहीं हो सकता। इसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और भूत को जितने भी लोगों ने देखा है वो कहते हैं कि वो हमेशा सियाह लबादे में होता है। दूसरी बात, जब तुमने गोपाल को भगाने के लिए पत्थर मारा तो भूत भूत चिल्लाता भागा। यानी वो समझा कि इसे पत्थर भूत ने मारा है। इसका मतलब वो खुद भूत नहीं है। फिर वो कब्रिस्तान क्यों आया? हम क्यों आए हैं? भूत को रंगे हाथों पकड़ने और वो हमें पकड़ने। इसे जैसे झटका लगा, मगर इसे कैसे पता चला? वो तो आज शिकार पे जा रहा था। इसे यकीनन वो रुका पड़ा होगा और छुप कर तुम्हारा पीछा किया होगा। तुम वाकई राजपूतों के मुलाजमों पर भरोसा है? ओह खुदाया, माया परेशान सी हुई। अगर वो गांव में है तो मुझे वापस जाना चाहिए। फिर किसी रात दोबारा से घात लगाएंगे। अभी तो मुझे खुद खासा खौफ आ रहा है। इसने टूटी फूटी कब्रों को देखकर झुरझुरी ली और फाटक की जानिब बढ़ गई। वो चेहरे पर ढेरों थकान लिए इसे दूर होते देखता रहा। असल बात तो माया के लबों पर अधूरी दम तोड़कर कच्चे रास्तों की धूल में गुम हो गई थी। गांव में अजीब सी बातें फैल रही थी। सुबह नाश्ते की मेज़ पे ये पहली गैर रस्मी बात थी जो ठाकुर रघुनाथ ने इससे कही थी। गोपाल आज नाश्ते पे नहीं था। ठाकुर रघुनाथ ने इसे बताया कि वो पिछली शाम से शिकार पे गया हुआ है और इसने फ़ौरन यकीन कर लिया था। कैसी बातें? वो आराम से छोटे छोटे लुक़्मे लेती रही। जाने किस मर्दूद ने फैलाई है। मैं तो सोच सोच कर डर रहा हूँ कि अगर ये बातें फैलती रहीं तो भगवान जाने क्या नतीजा निकलेगा। अरे क्या बात हो गई ठाकुर साहब, क्यों परेशान हैं?
हमदर्दी से कहते माया ने हाथ रोक लिया। एक तो FIR वाली बात, भले हम शरीकों को वजाहत देते फिरें कि हमारी बिटिया को गलतफहमी हो गई थी, मगर क्या कहिए इन लोगों की। वो कहते हैं कि हिचकिचा कर उन्होंने इन अल्फाज का चुनाव किया जो माया को ग्राह ना गुजरे कि मेम साहब को ठाकुर कैद करना चाहते हैं, मैं इसकी जायदाद हथियाना चाहते हैं। चिंगेर पकड़े अंदर दाखिल होती रूपा ने बेख्तियार सीने पर हाथ रखती खौफजदा सी पीछे हुई। च माया ने रुमाल से हाथ साफ करके बहुत अफसोस से इन्हें देखा। ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसी बात किसने फैलाई होगी। पर्दे की ओट में खड़ी रूपवती सर से पैर तक लरस गई। मालूम नहीं आपको है अंदाज़ा? मेरे लिए तो ये खबर है ठाकुर साहब, अंदाज़ा काहे को होगा। खैर अगर कोई आपसे इस मुतालिक इस्तफसार करे तो उसे वहाँ से ज़रूर कर दीजिएगा कि महज बेबुनियाद बातें हैं, हमारी साख को तबाह करने की कोशिश है। वो चेहरे पर परेशानी और तफक्कुर की गहरी लकीरें लिए उठ खड़े हुए। इनके कमरे से निकलते ही रूपवती दौड़ती हुई आई और इसके पाँव पकड़ लिए। मेम साहब मुझे बचा लो, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। रतन बुआ या जोहरा बीबी ने आगे कह दिया होगा, मगर भगवान के लिए मेम साहब बड़े ठाकुर को ना बताइएगा कि ये बात मुझसे आगे हुई है। वो रो देने को थी। भाई मान गए तुम्हारे हिंदुस्तान को। वो रुमाल रखकर उठ खड़ी हुई, पाँव आहिस्ता से पीछे को किए। जहाँ पर्चा होगा ना ही रेडियो, वहाँ भी शाम होने से पहले हर बात फैल चुकी होती है। जो सुना था आज देख भी लिया। और रूपा शजदसी से बाहर जाते देखती रही। वो जो समझी थी कि इसने मेम साहब को इस्तेमाल करके छोटे ठाकुर से ढेरों रुपए बटोरे हैं, आज इस पर इंकशाफ हुआ था कि इस्तेमाल तो वो खुद हुई थी। लकड़ी की मेज़ पर चाची कपड़ा बिछाकर इसका खाना रखने लगी। वो आस्तीनों कोहनियों तक मोड़े होते हुए चारपाई पर आ बैठा। राहदारी से आती जोहरा सतून के करीब छिटक कर रुकी। वो सुबह का निकला वापस हवेली आया था। जोहरा ने इसे 2 रोज़ बाद देखा था। वो फजर के साथ ही चला जाता था, फिर जाने रात को किस वक्त आता इसे तो पता ही ना चलता। और अब कितनी अचानक से वो इसे दोपहर में घर में देख रही थी। वो झट सतून की ओट में हो गई, हाथ बेख्तियार शाने पर ढल के आंचल की जाने बढ़ा और सर ढांप लिया। इसे लगा एकदम से ही आंगन में कहकशा के सारे सितारे उतर आए हों। ये डाक आई थी शहर से, फाजिल देकर गया है। चाची ने पीला लिफाफा इसके सामने रखते हुए मसालची का नाम लिया। अच्छा। वो खाने से हाथ रोक कर लिफाफा उलट पुलट करने लगा। पहले रोटी तो खा ले पुत्र। चाची साथ ही चारपाई पर बैठ गई। खाता हूँ। वो मसरूफ सा लिफाफा चाक करके अंदर से अदालती कागज़ निकालने लगा। क्या लिखा है? कुछ खास नहीं, सोमवार को पेशी है, शहर जाना होगा। वो रोटी तोड़ने लगा। किधर मसरूफ़ रहता है आजकल? माँ के लिए घड़ी 2 घड़ी भी नहीं, बस कुछ काम था। खैर घर में सब ठीक है, करम है मौला का। बिल्किस की बेटी की शादी हो गई। इसने अपनी वाई खिलाई का नाम लिया तो चाची ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ कल ही रुखसत हुई है, पैसे दे दिए थे। हाँ और जोहरा ठीक है, नज़र नहीं आ रही। और सतून की ओर में छुपी जोहरा को लगा इसकी सारी दुआएं मकबूल हो चुकी हों। मन ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये फ़िक्र भरी बेफिक्री और अपनाइत भरी लाताल्लुक़ी, यही सब तो इसे बदन में अच्छा लगता था। अपने लिए या फिर इसकी आंखें इसे वही दिखाती थी जो दिल और दिमाग देखना चाहते थे। अच्छी है। और वो जो अंदर आने लगी थी बदल के अगली बात पर रुक गई। जोहरा का क्या सोचा है? सोचना क्या है, सारा जेवर कपड़ा तैयार है, इस जाड़े शादी कर दूंगी। बदर का मुंह को जाता निवाला लिए हाथ रुक गया। किसके साथ? बदर। चाची को धक्का लगा था। तेरी और जोहरा की बात बचपन से तय है, और जैसे बचपन गुजर गया वैसे ही वो बात भी गुजर गई। अम्मा खबरदार, जो तूने ऐसी बात मुँह से निकाली वो जान देती है तुझ पर। इसका जहन तेरे हवाले से बन चुका है, तो मैंने नहीं बनाया जहन। तूने और अब्बा ने मुझसे पूछे बगैर फ़ैसला किया था। मैंने तो कभी इसकी हौसला अफजाई नहीं की। फिर मेरा क्या कसूर? तुझे वो किसी कसूर की सज़ा लगती है? मैं ये कब कह रहा हूँ? तू क्या कहना चाह रहा है? अम्मा इसे मुझसे बेहतर मिल जाएगा, मगर वो तेरे नाम से मंसूब है। तो क्यों इससे नाखुश है?
है कोई पूरे गांव में इस सी सघड़ सलीकामंद और हसीन लड़की? फिर मैं खुश नहीं रहूँगा। अगर तू ये चाहती है तो कर दे मेरी इससे शादी। वो तेज़ी से उठा और बाहर निकल गया। चाची सीने पर हाथ रखे परेशानी से इसे जाते देखती रही और वो जो सतून के आड़ में खड़ी थी निढाल से नीचे बैठती चली गई। तो फिर मैं खुश नहीं रहूँगा, तो फिर मैं खुश नहीं रहूँगा, मैं खुश नहीं रहूँगा। इस फ़िक्रे की तकरार इसके कानों पर हथौड़े बरसा रही थी। बहुत सी आवाज़ें शामिल हो गई थी, बचपन की, लड़कपन की, शऊर की, चौखट की, हसीन यादों की आवाज़ें। और फिर आवाज़ों के इस हजूम में एक मध्यम मगरूर सी आवाज़ उभरी, तुम्हारी चाची ठीक कहती है ज़ोरा, तुम भी किसका गम करती हो? और वो चौंक सी गई। मेम साहब, नफ़रत, रक़ाबत और हसद की एक भरपूर लहर इसके वजूद में दौड़ गई। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। वो मुट्ठियाँ भींच कर उठी और भागती हुई हवेली के पिछवाड़े खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी।